and welcome. Welcome to learning session number 2 of chapter number 5 of Algebra, which is probability. Okay. So our objective for today is going to be students will be able to write sample space for an event and sample points. Okay. Sample space and sample points. So to achieve this objective for today, we need to first know what is sample space and sample points. Okay. So the set of all possible outcomes of a random experiment. So random experiment we had seen in our previous learning session, right? There are three conditions to be satisfied for a random experiment. What are the three conditions? First condition is uh, all the possible outcomes should be known of the random experiment. For example, tossing a coin. When you toss a coin, you know there are only two possibilities, heads or tails. Or when you throw a dice, you know there are only six possibilities. The number can be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Either of the six numbers are going to be the outcomes of that random experiment. Okay, so the first condition is all the outcomes should be known in advance. Second, you should not be able to predict any outcome. For example, whenever you toss a coin, you cannot actually say whether it is going to be heads or tails, right? You cannot predict it. Or similarly, when you throw a dice, you cannot predict what the number is going to come. It is always random. So second condition is you should not be able to predict the outcome. And the third one is all outcomes have equal possibility. Okay. So जब मैं टॉस कर रहा हूँ, हेड्स आने का भी इक्वल पॉसिबिलिटी है, टेल्स आने का भी इक्वल पॉसिबिलिटी है. Similarly, when I throw a die, the possibility of any number to come is equal. ऐसा नहीं कि 6 नंबर आने का कम चांसेस है, 1 नंबर आने का ज्यादा चांसेस, ऐसा नहीं होता. हर नंबर आने के चांसेस possibilities equal होते हैं. So these are the three conditions for a random experiment. We should know all the possible outcomes. We should not be able to predict any outcome, and lastly all outcomes should have equal possibility. Okay. So sample space जो है, it talks about random experiment. So the set of all possible outcomes of random experiment is called sample space. Okay. So say for example, if my random experiment is tossing a coin, तो उसके sample space में दो चीजें होंगी, एक तो होगा हेड्स, दूसरा होगा टेल्स. तो ये हेड्स और टेल्स, ये दो आउटकम्स का एक पूरा सेट जो होगा उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट. कॉइन को टॉस करेंगे तो सिर्फ दो ही आउटकम्स आते हैं, हेड्स या टेल्स, राइट? सो मैं अगर एक सेट बना दूं और उस सेट में दो चीजें, एक है हेड्स एक है टेल्स, तो उस सेट को मैं बोलूंगा सैंपल स्पेस. किसका सैंपल स्पेस? द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. Okay, so ये जो set है, it is denoted by the capital letter S, and so we now know what is sample space. Okay, set of all possible outcomes of random experiment. कोई भी random experiment में जितने भी possibilities है सबका एक set बना दो, उसको हम बोलेंगे sample space. Then what is sample points? Each element of the sample space is called a sample point. Okay, so अगर मैं heads and tails का एक sample space बना दिया, तो head एक sample point है, tails एक sample point है. तो हर एक possible outcome उस sample space के set में, उसको हम sample point बोलेंगे. Okay, and number of elements in set of sample space is denoted by n bracket s. Okay, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? Number of sample points in sample space. Okay, this is how you read. N of s को क्या बोलेंगे? Number of sample points in sample space. Sample points यानी कितने outcomes है अंदर. Okay, so now we know what is sample space and sample points. Let us look at some examples. Okay, so if the random experiment is a coin I said if a coin is tossed. Okay, if the random experiment is one coin is tossed, then sample space will be what? H comma T. यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है. ओके, राइट साइड में जो ब्रैकेट दिया है, दैट दे हैव ड्रॉन अ कर्व. इसको कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे? इट्स अ वेरी नॉर्मल ब्रैकेट, राइट? ऐसा वाला दिखने वाला सी शेप का ब्रैकेट है, बट वैसा ब्रैकेट नहीं लिख सकते तुम लोग फॉर सेट्स. ओके, फॉर सेट्स यू हैव टू ड्रॉ दिस कर्वी ब्रैकेट. ओके, सो मेक, एंड द रीजन इज मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप्स के ब्रैकेट्स का अलग अलग मीनिंग होता है. So for sets, we know we use this kind of bracket. So you cannot use any other type of bracket. Okay, so make sure you're correcting this in your textbook and not copying this this way in your notebooks. And whenever you write any set, उसका जो bracket होगा वो थोड़ा curvy होता है. ऐसा normal जो seed shape का होता है या फिर square brackets होता है, वो नहीं use कर सकते. Okay, so random experiment का, sorry, if one coin is tossed, that is a random experiment. Your sample space is going to be H comma T. H for heads, T for tails. दो ही outcomes है.
सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2, क्योंकि अंदर सिर्फ दो ही सैंपल पॉइंट्स है। नेक्स्ट, एक कॉइन के बजाय अभी दो कॉइन्स टॉस कर रहे हो, ओके, यू हैव टू कॉइन्स, यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स एट अ टाइम, देन व्हाट इज गोइंग टू बी योर सैंपल स्पेस। तो एक पॉसिबिलिटी है दोनों हेड्स है, दूसरा पॉसिबिलिटी है पहला वाला हेड है दूसरा वाला टेल्स है, तीसरा पॉसिबिलिटी उल्टा, पहला वाला टेल्स है दूसरा वाला हेड्स है, एंड चौथा पॉसिबिलिटी होगा दोनों टेल्स है, राइट। सो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स। सो योर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दिस सैंपल स्पेस विल बी 4, क्योंकि इस सैंपल स्पेस के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 4 पॉइंट्स है। सो दोनों हेड्स दोनों टेल्स, पहला वाला हेड्स दूसरा वाला टेल्स, पहला वाला टेल्स दूसरा वाला हेड्स, दिस इज योर, these are all possible outcomes when you toss two coins simultaneously. Okay. Third, 3 coins are tossed simultaneously. अभी जब 3 coins toss हो रहे हैं तब वो थोड़ा उसका sample space लिखना थोड़ा complicated हो सकता है, hence I have written it अलग से in different colors. Okay. So when 3 coins are tossed, the sample space will be, again see here the way I have drawn the uh, bracket required for a set. तुम लोग को set के लिए हमेशा ऐसा bracket draw करना है, okay, you all cannot draw the normal bracket or the square bracket, ऐसा वाला bracket ही draw करना है, okay. सो 3 कॉइन्स टॉस हो रहा है, राइट, उसका अगर सैंपल स्पेस लिखना है, यानी जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है सारे आउटकम्स हमें लिखने हैं। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज, पहले वाले में फर्स्ट हमेशा हेड डाल दिया, ओके, पहला वाला कॉइन का हमेशा समझो हेड आ गया, यहाँ पे भी हेड, यहाँ पे भी हेड, यहाँ पे भी हेड। तो अभी बाकी दो के क्या क्या आउटकम्स है, दोनों हेड्स दोनों टेल्स, पहला वाला हेड दूसरा वाला टेल, पहला वाला टेल दूसरा वाला हेड। तो मेरे अगर फर्स्ट कॉइन हेड्स है तो बाकी दो कॉइन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो मैंने पहले लाइन में लिखा। अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, अभी नेक्स्ट लाइन पे मैंने पहला वाला हमेशा टेल्स लिखा है, ओके, फर्स्ट वन इज ऑलवेज टेल्स। तो फर्स्ट वन अगर हमेशा टेल्स है तो बाकी दो के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगेन सेम कॉम्बिनेशन, दोनों हेड्स दोनों टेल्स, पहला वाला हेड दूसरा वाला टेल, पहला वाला टेल्स दूसरा वाला हेड्स। सो ऐसे करके मैंने सारे आउटकम्स लिख दिए, यू कैन चेक, इसके अलावा कोई दूसरा आउटकम नहीं आएगा इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। सो इट वाज जस्ट, इसको तुम्हें सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा, इसमें से अगर एक भी तुम लोग ने नहीं लिखा और तुम लोग ने यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स और सैंपल स्पेस 8 के बजाय 6 ही लिखा तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। सो जब भी तुम सैंपल स्पेस लिख रहे हो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, और उसके लिए तुम लोग को सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा। सो मैंने सिस्टमैटिकली कैसे लिखा है, पहले में फर्स्ट कॉइन का आउटकम फिक्स कर दिया हेड्स, और बाकी दो कॉइन्स के क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो लिख दिए। फिर सेकेंड लाइन में वो जो फर्स्ट कॉइन था उसका आउटकम फिक्स कर दिया, टेल कर दिया, और अगेन सेम प्रोसेस से बाकी जो दो कॉइन्स है उनके अलग अलग आउटकम्स लिखे। इससे मैंने सारे के सारे आउटकम्स को कवर कर लिया, ओके। सो व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड दीज आर द 8 आउटकम्स, सो n of s will be 8, okay. So here also they have written it correctly, but इतना systematically नहीं लिखा है. So I have just used different colors to make you all understand it better. Okay. So इसमें 8 sample points है इस sample space में. Next, a die is thrown. This is very easy. अगर एक dice throw करोगे तो कितने possible outcomes है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 and 6 आ सकता है. तो इसमें कितने sample points है? 6. Okay. So here the answer will be 6. Make sure you're writing the answers either in your notebooks or in your textbooks. I know I've written do not copy here. So if you don't want to copy this entire thing in your notebook, that's okay. But फिर textbook में pencil से लिख लेना, okay? Next, 2 dice are thrown. अभी 2 dice throw हो रहा है, तो अगेन वो लोग ने भी यहाँ पे काफी सिस्टमैटिकली लिखा है, ओके। तो समझो फर्स्ट वाले डाइस में 1 आया, तो सेकेंड वाले डाइस में क्या क्या ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अभी फर्स्ट वाले डाई को 2 लिख दिया, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चीजें सेकेंड डाई में। तो वो लोग ने भी काफी सिस्टमैटिकली लिखा है, और अगर तुम ऐसे सिस्टमैटिकली लिखोगे तो सारे के सारे आउटकम्स कवर हो जाएंगे, ओके। सो इफ यू काउंट, यहाँ पे कितने चीजें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हॉरिजॉन्टली 6 है, वर्टिकली कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हॉरिजॉन्टली 6, वर्टिकली 6, 6 6 36। तो यहाँ पे 36 पॉसिबल आउटकम्स है। एंड अगेन देखो वो लोग ने किस तरीके से लिखा, यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया, उसके 1,1 लिखा है, फिर वापस ब्रैकेट के बाहर कॉमा, वापस नॉर्मल ब्रैकेट में 1,2। सो मेक श्योर यू आर चेकिंग हाउ दे आर राइटिंग द सैंपल स्पेस, द सेम वे यू हैव टू राइट सैंपल स्पेसेस इन योर आंसर पेपर्स, ओके। And again, this is very easy. If you practice 1 or 2 sums from this type, then it is going to be very easy. Just make sure you're writing them
सिस्टमैटिकली एंड करेक्टली, ताकि तुमको सारे के सारे आउटकम्स पता चल रहा है। ओके, सो ये लोग ने सिस्टमैटिकली कैसे लिखा है, पहले वाले डाइस का सिर्फ 1 लिख दो और दूसरे वाले डाइस के क्या क्या ऑप्शन है वो लिख दो, फिर सेकंड लाइन पहले वाले डाइस में 2 लिख दो, सेकंड वाले डाइस में क्या क्या ऑप्शन है, सो एंड सो फोर्थ। उससे वो लोग ने सारे के सारे आउटकम्स कवर कर लिए। ओके, अगर एक भी आउटकम मिसिंग होगा तो सैंपल स्पेस गलत हो जाएगा एंड मार्क्स 0 मिलेंगे। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि सारे के सारे आउटकम्स तुम लोग लिख पा रहे हो। लेट्स मूव अहेड। A card is drawn from a pack bearing numbers from 1 to 25. Okay, so एक पैक है, उस पैक में कार्ड्स है अलग अलग और सारे कार्ड्स पे 1 से लेके 25 तक नंबर्स लिखे हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, उस कार्ड पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अभी पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, डॉट डॉट लिख के लास्ट नंबर 25 है तो 25 लिख दो। ओके, सो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। सो कितने नंबर्स है, कितने सैंपल पॉइंट्स है इस सैंपल स्पेस में, इट इज 25। सो यहाँ पे 25 आ जाएगा। लास्ट वन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पत्ते खेलते हैं हम लोग, सो पत्ते जो खेलते हैं उसके पैक में से हम लोग एक कार्ड निकाल रहे हैं। सो पत्ते में कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज डायमंड। ओके, जो करंजी जैसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड डायमंड। नेक्स्ट हियर दिस इज कॉल्ड एज स्पेड, जो लीफ की तरह दिख रहा है। हम लोग मराठी, आई डोंट नो मराठी और हिंदी, इसको स्पिक बोलते हैं। सो इसका अगर इक्का आएगा उसको पहले कार्ड थ्रो करना होता है, राइट? तो इसको स्पिक का इक्का बोलते हैं हिंदी या मराठी में, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज स्पेड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्पेड, दिस इज ऑब्वियस, दिस इज कॉल्ड एज डायमंड एंड दिस इज कॉल्ड क्लब। ओके, सो 3 पेटल्स टाइप का लीफ, इसको क्लब बोलते हैं। सो इन सारे अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स के कितने नंबर्स होते हैं, ए 1 नहीं होता, 1 के यहाँ पे ए होता है। ओके, इक्का बोलते हैं हम लोग उसको। सो इंग्लिश में उसको एस बोलते हैं। फिर में 2 से लेके 10 तक नंबर्स होंगे, फिर जैक, जैक यानी गुलाम, जनरली वी कॉल इट गुलाम, राइट? गुलाम, फिर रानी और राजा। सो डायमंड के ऐसे कार्ड्स होंगे, वैसी सेम स्पेड के, सेम हार्ट के, सेम क्लब के। तो कितने टोटल हो गए, इक्का 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 10 तक, तो 10 कार्ड्स हो गए। फिर गुलाम, राजा, रानी, या फिर जैक, क्वीन, किंग। सो 10 + 3 13। सो डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे, स्पेड के 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट के 13 कार्ड्स होंगे और स्पेड नो सॉरी दिस क्लब, क्लब के 13 कार्ड्स होंगे, राइट? सो 13 + 13 + 13 + 13 कितने कार्ड्स हो गए, 52। 13 4 ज़ा 52। और वहां पे यहाँ पे लोग ने लिखा भी है, बट दे हैवंट रिटन इट, रिटन अ करेक्ट सैंपल स्पेस। ओके, सो अगर सैंपल स्पेस बोला तो तुम लोग को इस तरीके से लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट स्पेड एस, स्पेड 2, स्पेड 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्पेड जैक, स्पेड क्वीन, स्पेड किंग, कॉमा, फिर बाद में डायमंड एस, डायमंड 2, डायमंड 3, डायमंड जैक, डायमंड क्वीन है। सब कुछ तुम्हें एक वो कर्वी ब्रैकेट में डाल के एस इक्वल टू लिखना है, तब जाके वो सैंपल स्पेस बनेगा। फिर इसमें कितने होंगे, इन सारे टाइप्स के 13 कार्ड्स होते हैं, ए 2 3 4 से लेकर 10 तक, फिर जैक, क्वीन, किंग, ऐसे 13 कार्ड्स होंगे। सो 13 4 ज़ा 52। सो सैंपल स्पेस फॉर a card drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards will be 52। 52 cards अगेन यहाँ से भी पता चलता है, राइट? 52 cards है तो बेसिकली सैंपल स्पेस 52 होगा। ओके, बट यू शुड नो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं और चारों टाइप में ये सब नंबर्स होते हैं। ओके, इट विल बी यूज्ड इन आवर, इट माइट बी यूज्ड इन आवर सम्स। Okay, so now we have seen examples. Now I think we feel confident enough to solve the practice set now. Okay, so let us move on to practice set. So practice set 5.2 का first question. For each of the following experiments, write sample space and number of sample points. Okay, so first one coin and one die are thrown simultaneously. Okay, एक coin को toss भी कर रहे हैं और एक dice को भी फेंक रहे हैं, दोनों को साथ में कर रहे हैं। So क्या क्या outcomes हो सकते हैं, पहले हेड्स आके नंबर 1 आ गया, फिर हेड्स आके नंबर 2, हेड्स नंबर 3, हेड्स नंबर 4, हेड्स नंबर 5, हेड नंबर 6। ओके, सो समझो अगेन ये भी वापस वो लोग ने काफी सिस्टमैटिकली लिखा है। कैसे, पहले वो लोग ने अज्यूम कर लिया कि हमेशा हेड्स आ रहे हैं, हेड्स आ रहे तो डाइस में क्या क्या आ सकते हैं, हेड्स में 1 2 3 4 5 6 7 6। ओके, नॉट 7 एंड 8। सो हेड्स में 6 नंबर आ सकते हैं। सिमिलरली अभी समझो हेड्स के यहाँ पे टेल्स आ गया, तो टेल्स, जब टेल्स आ रहे टॉस में तभी भी नंबर 1 to 6 आ सकते हैं, राइट? सो वो लोग ने भी काफी यहाँ पे सिस्टमैटिकली सारे आउटकम्स लिखे हैं। इसके अलावा कोई भी आउटकम्स नहीं आ सकते इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के। ओके, सो कितने हो गए, ऊपर 6 नंबर्स है, सॉरी ऊपर 6 सैंपल पॉइंट्स है, नीचे 6 सैंपल पॉइंट्स है, तो 6 + 6 12। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 12। नाउ यू ऑल ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। ओके,
two digit numbers are formed using digits 2, 3, 5 without repeating a number. तो 2, 3 और 5 ये नंबर्स यूज करके टू डिजिट नंबर्स बनाने, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. तो इसमें क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स बन सकते हैं. ट्राई इट बाय योरसेल्फ. आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, pause the video here and try to write the answer for the second one by yourself. Okay, I hope you all pause the video and have tried to write the answer. If you have written it correctly, your confidence is going to increase. If you have not written it correctly, you're going to learn from your mistake right now. Okay, so टू डिजिट नंबर्स बनाने, राइट. सो पहले टू को ले लो. सो टू के साथ थ्री, टू के साथ फाइव, तो 23 और 25 आ गए पहले दो नंबर्स. फिर बाद में थ्री को फर्स्ट नंबर बना दो. सो थ्री के साथ टू, 32, थ्री के साथ फाइव, 35. 32 और 35 बाकी के दो नंबर आ गए. फिर फाइव को फर्स्ट डिजिट बना दो. सो फाइव के साथ टू, 52, फाइव के साथ थ्री, 53. सो 52 एंड 53 लास्ट टू नंबर्स आ गए. बस इतने ही नंबर्स टू डिजिट के बन सकते हैं. और नंबर्स बनाए तो नंबर्स रिपीट करने पड़ेंगे, 22, 33, 55, सो एंड सो फोर्थ. बट यहाँ पे रिपीट किए बिना टू डिजिट नंबर्स बनाने थे, राइट. सो दिस इज आवर सैंपल स्पेस. ये 6 नंबर्स बनेंगे एंड number of sample points will be 6. Okay, let us move ahead. Second question. The arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out which color it may stop. Okay, so यहाँ पे colors कितने हैं? There are total 6 colors on this disk. Okay, so the sample space will be what? ये जितने भी colors है सबको लिख दो तो तुम्हारा sample space बन जाएगा. तो sample space लिख दिया हम लोग ने. Then what is the number of sample point? 6. 6 colors है तो 6 ऑप्शंस है, राइट. 6 आउटकम्स हो सकते हैं. सो 6 इज द सैंपल स्पेस. क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप. So the arrow may stop on any one of the 6 colors, right? So to be honest, if I was a student, मैं ये सब लिखता ही नहीं. मैं सीधा बोल देता कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. और क्योंकि आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी 6 कलर पे वो एरो रुक सकता है. ओके, सो सैंपल स्पेस के बिना भी कर सकते हो, बट बिकॉज इन योर टेक्स्ट बुक they expect you to write the sample space, so you all also write the sample space in the exam if a similar question comes in exam. Okay, with that we are also done with question number 2. Let us move on to the next question. Okay, in the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. Okay, कौन से डेज पे, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कौन से डेज पे डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. 5 का मल्टीपल डेट है. सो यहाँ पे कैलेंडर दिया है. सो लेट अस फर्स्ट मार्क ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आते हैं. ओके, सो 5 के टेबल में फर्स्ट 5 आने वाला है, देन 10, फिर बाद में 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 एंड 30. फिर क्या करोगे? ये जो कोई भी 5 के मल्टीपल्स है उनके डेज नोट कर लो. फॉर एग्जांपल 5 ट्यूसडे पे आया, 25 मंडे पे आया, 20 वेडनेसडे पे आया, 15 फ्राइडे पे आया, 30 सैटरडे पे आया, 10 संडे पे आया. सो कौन से डेज हो गए? तो मल्टी डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30. वो हम लोग ने मार्क कर लिया. तो डेज कौन से हो गए? ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे. ओके, सो टोटल कितने डेज मिले हमें? टोटल 6 डेज मिले, राइट. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज द डेज ऑन विच द डेट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5 आर ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे. ओके, अगेन नॉट रियली अ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. अगर हम लोग ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं किया होता, सीधा हम लोग ने यहाँ पे मार्क करके वो जो मार्किंग है कौन से डे पे आ जाए वो देख लिया होता, फिर भी आंसर मिल जाता. बट अगेन बिकॉज दिस चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी एंड द टेक्स्ट बुक बोला मैंने, if the textbook expects you to write it this way, make sure you're writing it this way in the exam also. Okay, so again very simple sum. To be honest, you don't even need to know mathematics or probability to answer these questions. These are very simple questions. That is why I always keep saying probability is very scoring. So exam में कभी probability का question आया तो उसको कभी छोड़ना नहीं है, और उसको बहुत अच्छे से practice करके जाना है इस particular chapter को, so that you never get any probability question wrong in options which are given in board exam. Okay, last, form a road safety committee. Okay, road safety committee बनाना है of 2 people from 2 boys B1 and B2
एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2. सो 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, सॉरी 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं. सो टोटल 4 लोग हैं और उन 4 लोगों में से 2 लोगों की टीम बनानी है फॉर रोड सेफ्टी कमिटी. सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस. सो कमिटी अगर सिर्फ बॉयज की कमिटी बनानी होगी तो क्या होगा हमारा सैंपल पॉइंट? इट विल बी बॉयज, बॉय 1 बॉय 2, राइट? क्योंकि हम लोग को फर्स्ट केस में सिर्फ बॉयज की कमेटी बनानी है. सिमिलरली अगर सिर्फ गर्ल्स की कमेटी बनानी है, सो योर सैंपल पॉइंट विल बी G1 G2, गर्ल नंबर 1 एंड गर्ल नंबर 2. नाउ कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. ओके, 2 बॉयज या 2 गर्ल्स नहीं होने चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए. तो फिर कमेटी कैसे बनेगी? पहला बॉय पहली गर्ल, नेक्स्ट बॉय 1 गर्ल 2, नेक्स्ट बॉय 2 गर्ल 1 एंड बॉय 2 गर्ल 2. ओके, सो अगेन सिस्टमैटिकली कैसे लिखा है वो लोग ने? फर्स्ट हमेशा बॉय 1 ले लिया, सो बॉय 1 के साथ गर्ल 1, फिर सेम बॉय 1 के साथ गर्ल 2, फिर बाद में बॉय 1 के सारे आउटकम्स खत्म हो गए, फिर अभी बॉय 2 को लेना शुरू किया. सो बॉय 2 के साथ गर्ल 1 एंड बॉय 2 के साथ गर्ल 2, राइट? सो अभी सारे आउटकम्स खत्म हो गया. अगर सिर्फ 2 बॉयज होंगे तो ये सैंपल पॉइंट होगा, सिर्फ 2 गर्ल्स होंगे तो ये सैंपल पॉइंट, एक लड़का एक लड़की होंगी तो ये 4 सैंपल पॉइंट. सो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? इन सबको मिला के सारे आउटकम्स का सेट होता है, राइट? सैंपल स्पेस. तो सारे आउटकम्स साथ में लिख देंगे in curly brackets. Okay, so this is your final answer. So make sure either you're copying this in your notebook or you're copying this in your textbook itself with pencil. Okay, so let us revise what all did we study today. Let me increase the size. Yes, what all did we study today? We first studied sample space. What is sample space? Sample space is a set of all possible outcomes. क्या क्या possible outcomes हो सकते हैं उनका set है when you perform a random experiment. And then we see what is sample point. तो अगर एक बार sample space बन गया, उसमें जो कोई भी outcomes है, जो कुछ भी elements है, उन सबको sample points बोलते हैं. Okay, and just check if you achieved today's learning objective. क्या था आज का learning objective? Write sample space for an event and its sample point. तो अगर मैं तुम्हें कोई भी event दे दूं, कोई भी random experiment बता दूं, तो can you write the sample space and number of sample points of that sample space correctly? That's the question. If yes, then good. If not, then just see what can you do about it. Can you watch this video again? Can you ask help for a friend, from a friend? Can you watch other YouTube videos on the internet? Can you use some other app so that you can get someone else teaching you? You have to decide that for yourself. Okay, so that's it for this learning session. I hope you enjoyed. We have all again covered the second practice set also. फर्स्ट लर्निंग सेट सेशन में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हो गया, सेकंड लर्निंग सेशन में सेकंड प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया. सो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर एंड इट्स अ वेरी small chapter also, so we'll quickly finish off this chapter. That's it for today. I hope to see you all again tomorrow. Till then, bye, peace, and have a good day.